Hello, it is Bipin Sandil from Gyan Darshan tutorial. Let us see question number 9. It is from Joint Stock Company, issue of shares. Bharat Solar Powers Limited having the authorized share capital of 1 lakh equity shares of rupees 20 each. So if its authorized share capital is divided in 1 lakh equity shares of rupees 20 each, so if someone asks us what is the authorized capital of the company, we will answer the authorized share capital. Authorized share capital is also known as registered share capital or nominal share capital is 20 lakh. How it is 20 lakh? 1 lakh into 20. Okay, then let us move in next part of the question. Issued. Now I am discussing from here. Issued 10,000 equity shares of rupees 20 each at a premium of rupees 2 per share payable on application. Payable on application rupees 8. On allotment rupees 7 including premium. Premium will be 2. On first call rupees 4 and balance on second and final call. So if 20 rupees is for share capital and 2 rupees is for premium, so 22 rupees should be collected, of which 8 on application, 7 on allotment. So 8 plus 7, 15, 4 on first call. So 8 plus 7, 15 plus 4, 19. So balance on second and final call will be 3. Okay. Now let us move ahead. Subscription received on 15,000 shares. See, we have issued only, the company's authorized share capital was 1 lakh shares of rupees 20 each, 20 lakh. It has issued only 10,000 equity shares of rupees 20 each. That means its issued share capital was 10 lakh shares into 20. That is 10,000 shares into 20. That is 2 lakh. Now, here what we are seeing that subscriptions were received on 15,000 shares. So, if someone asks us what is the subscribed share capital of the company, the subscribed share capital is 15,000 shares into 20. So 15,000 shares into 20 equals to rupees 3 lakh. So company has issued 10,000 shares, but it has received application for 15,000 shares. Now the board of directors allotted 10,000 shares amongst the applicants of 12,000 shares on pro rata basis to be adjusted on allotment, and remaining applicants were sent letters of regret and their money was refunded. अब इसका क्या मतलब हो जरा देखिए कि कंपनी ने इश्यू किया था 10,000 शेयर, लेकिन एप्लीकेशन आ गया 15,000 शेयर पे, तो कंपनी ने क्या किया 12,000 एप्लीकेंट वाले को 10,000 शेयर का मालिक बनाया. ओके, तो यानी 2,000 शेयर्स का पैसा उनका प्रोराटा एडजस्टमेंट होकर के अलॉटमेंट में कट जाएगा. और बाकी 3,000 के बारे में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ देखिए ध्यान से लिखा है कि रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वेर सेंट लेटर्स ऑफ रिग्रेट एंड देयर मनी वॉज रिफंडेड. मतलब बाकी 3,000 शेयर्स वालों को एप्लीकेशन में जो भी 3,000 इंटू 8 रुपये आया हुआ उसको रिफंड कर देंगे. ठीक है, ये समझ में आ गया. ऑल द इंस्टॉलमेंट्स वेर कॉल्ड अप एंड रिसीव्ड अप टू फाइनल कॉल. तो चलिए अभी पहले क्वेश्चन को बाद में आगे पढ़ेंगे. पहले अब हम लोग शुरू करते हैं कि एप्लीकेशन पे जो पैसा आया उसको वर्किंग कैसे क्या करेंगे. तो यहाँ लिखा है गिव नेसेसरी वर्किंग 3 मार्क्स. तो वर्किंग कैसे करते हैं, लेट अस डू द वर्किंग. Answer. See how I am doing the working. Application money received. Application money received equals to how much? 15,000 share into application price was 8, so 15,000 8 is a 15 is a 1,20,000 rupees received. But
of this less allotted on application. एप्लीकेशन पे अलॉट कितना हुआ? एप्लीकेशन पे अलॉट हो गया आपका ओनली 10,000, क्योंकि जितना हम इशू करते उससे ज़्यादा को अलॉट नहीं कर सकते. तो 10,000 शेयर्स इंटू 8. So 80,000 out of 1,20,000, 80,000 is the genuine money for application. बट हम लोगों ने क्वेश्चन में पढ़ा था कि 12,000 वाले को 10,000 शेयर्स अलॉट किया. इसका मतलब जो बाकी 2,000 है उसको 2,000 शेयर का 8 रुपये के हिसाब से, दैट इज़ द प्रोराटा एडजस्टमेंट टुवर्ड्स अलॉटमेंट. तो उसके लिए लेस प्रोरेटा एडजस्टमेंट टुवर्ड्स अलॉटमेंट. इसका मतलब हुआ कि 12,000 एप्लीकेंट को हम लोगों ने 10,000 शेयर का मालिक बनाया, तो उनके एक्स्ट्रा 2,000 शेयर का पैसा हम लोग आने वाले इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट में कटा देंगे. कितना कटाएंगे? 2,000 शेयर इंटू 8, यानी हो गया आपका 16,000. Okay. Rest money is refunded, so less money refunded फ्रॉम एप्लीकेशन. तो वो हो गया आपका 3,000 शेयर्स का 3,000 शेयर्स इंटू 8, तो आपका हो गया 24,000 रुपीज़. 24,000 रुपीज़ वापस चला जाएगा. ओके, दिस इज़ द वर्किंग नंबर 1. दिस इज़ कॉल्ड वर्किंग note 1. Okay, now let us do the working note 2. Working note 2. Working note 2 will be due on allotment. The next installment after application is allotment, and allotment is due on 10,000 shares, because genuine share is 10,000 share into what was the price on allotment? Allotment पे जो प्राइस है वो वहाँ लिखा हुआ है 7 including premium 2. So working note 2 due on allotment 10,000 shares into 7 including premium. So total money is due is 70,000. Okay, but what has happened? We have prorata adjustment towards allotment 16,000 rupees. This money, this 16,000 rupees is adjusted from application towards allotment. So this money will not be received. So what we will do here, what we have to do, we will less pro rata adjustment from application. How much rupees? 16,000 rupees. Money adjusted, not on the basis of shares.
So 16,000 rupees is adjusted. So out of 70,000, if 16,000 is already received along with application, so only actual due on allotment after pro rata equals to 54,000. Okay, so if on 10,000 shares total 54,000 is due, so what is due on per share? Let us check. Per share, due on first call, allotment, equals to 54,000 divided 10,000 equals to 5.4 rupees due. Out of 7 per share, only 5.4 rupees is due because of 16,000 pro rata adjustment. यानी 70,000 लेना था, उसमें से अगर 16,000 पहले ही एप्लीकेशन पर रिसीव कर लिया तो बाकी पैसा जो लेना है वो तो 54,000 रह गया. 10,000 पे अगर 54,000 तो एक शेयर पे 5 रुपया 40 पैसा. Now let us come to the question. What the question is saying is, that कि what has happened in the question. See from here. Now all the installments were called up and received up to final call except L, holder of where this is happening. Please be attentive here. All the installments were called up and received up to final call except L, holder of 50 shares, failed to pay allotment, and B, holder of 100 shares, failed to pay both the calls. So we are on allotment. So here only L is failure. L is failure of 50 shares. Okay, this thing we have to keep in mind. Now come to the solution point. Here what we have calculated? We have calculated that on allotment, out of 70,000 only 54,000 is due and per share due is 5 rupees 40 paise. So if 50 shares of L is in arrear, so calls in arrear, on allotment by L. He has not paid on his 50 shares. So 50 shares into 5 this much rupees into 5.4. What will happen if you multiply 5.50 into 5.4? I think it is rupees 270. So if out of 54,000 270 is not received, so what money is received? Money received on allotment equals to 54,000 minus 270 equals to 53,730. 53,730. Okay, so this working note 2 is also finished. Now come to working note 3. Working note 3 is for first call. So there is no any pro rata adjustment towards first call. So we will write due on first call.
So 10,000 share into 4. On first call, it was 4 rupees price. The 10,000 for the 40,000 money is to be received. But what has happened? When we go into the question, what we see that there is a lafra. What is the lafra? Let us go into the question. The question says us here, B, holder of 100 shares, failed to pay both the calls, and C, holder of 150 shares, failed to pay final call only. Okay, so here on first call, who are failing? On first call, the failure is L and B. 50 shares of L and 100 shares of B will not be received on first call. So while doing the working note 3, what we have written, due on first call 10,000 shares into 4 is equal to 40,000, out of which less calls in arrear equals to 150 into 4. So 150 into 4 is 600. The total amount not received on first call is 600. So money received on फर्स्ट कॉल कितना पैसा मिलेगा? देखिए इधर में 10,000 शेयर इंटू 40,000 लेना तो उसमें से 600 नहीं मिला, तो 40,000 माइनस 600 मनी रिसीव्ड इक्वल्स टू 39,400. Any doubt? No doubt. Now let us do the working note number next. Working note 4, I think. Here we will do the hisab kitab of second and final call. So second and final call, due on second and final call. I think the price on second and final call was 3. How 3? 8 on application, 7 on allotment, 8, 7, 15, 4 on first call, 19. So 3 on final call, because total 22 up to including premium. So 10,000 into 3. 10,000 into 3 equals to 30,000 is the total due sum on allotment. Sorry, on final call. Less, but out of which there are some arrear. Just we will go into the question and check calls in arrear. If you go into the question, you will see that L has 50 shares failure from the allotment till final call, and B has failed. B, holder of 100 shares, failed to pay both the calls, and C, holder of 150 shares. So already 150 shares in arrear of L and B. Now again C 150 shares. It means total 300 shares is in arrear on final call, second and final call. Okay, so calls in arrear less calls in arrear equals to 300. How 300? 50 shares of L, 100 shares of B, and 150 shares of C. So total 300 shares. 300 share into 3. So what much amount is not received? 900 rupees not received on final call. So money received on
final call equals to 30,000 minus 900. Okay, so 29,100 money is received on second and final call. Okay, now working note. Okay, working note number 5. This working note is for feature of shares. What is for feature of shares? When shareholder do not pay their sum on respective calls, the company gives them extra time. Let us go into the question and see what the question says us. Please see from here. आफ्टर लीगल नोटिस, इसका मतलब होता है कि शेयर होल्डर्स लोगों को नोटिस दिया जाता है कि भाई आप लोगों ने जो वो एल भाई साहब ने जो अलॉटमेंट से ही चक्का पंचर है, उनका एरियर है, नहीं दे पा रहे। बी का फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दोनों पे एरियर है 100 शेयर्स का, और सी का 150 शेयर्स का सिर्फ सेकंड एंड फाइनल कॉल पे एरियर है। तो ऑल द शेयर होल्डर्स एल बी एंड सी वे गिवन लीगल नोटिस कि भैया आप अपना पैसा जमा कर दीजिए। तब पर उन्होंने पैसा नहीं जमा किया तो क्या लिखा है? ऑल द शेयर्स इन एरियर वेयर फॉरफिटेड। बस अभी तक इतना ही तक समझना, फॉरफिटेड। इस हिस्से के लिए हम लोग को अभी वर्किंग करना है, दिस पोर्शन। तो कैसे करेंगे? लेट अस सी। Be patient to understand. This is the working. First of all, what is the rule? That if someone is failing, his or her total share capital is debited. तो शेयर कैपिटल डेबिटेड, तो ये कैसे होगा? देखिए 150 शेयर्स एल का, 100 शेयर्स बी का और 150 शेयर्स सी का, तो टोटल 300 शेयर्स इंटू 20, बिकॉज शेयर कैपिटल प्राइस इज 20, 320 इक्वल्स टू 300 इंटू 20 मीन्स 6,000। 6,000 से शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये पैसा नहीं मिला। फिर लेकिन और देखिए यहाँ पे प्रीमियम भी था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इज ऑल्सो डेबिटेड इफ समवन इज फेलिंग द इंस्टॉलमेंट ऑन विच देयर वाज प्रीमियम। जब वो भी डेबिट करेंगे तो किसका करेंगे? सिर्फ एल का करेंगे, क्योंकि अलॉटमेंट में फेल कौन किया है? एल। बाकी जो बी और सी हो तो फेल किया, बी एंड सी हैव फेल्ड फ्रॉम फर्स्ट कॉल बट द प्रीमियम वॉज ड्यू ऑन अलॉटमेंट ओनली। तो हु इज़ द फेलियर ऑफ प्रीमियम? ओनली एल। तो एल के लिए प्रीमियम भी डेबिट हो जाएगा 50 शेयर इंटू 2 बिकॉज प्रीमियम प्राइस वॉज 2 ओनली, so 100. So total money due from the shareholders who failed are 6,100. 6,000 on behalf of share capital and 100 on behalf of security premium reserve from L. Now less arrear. अब इन सब से एरियर कहाँ कहाँ था? एरियर इसमें ऐसे समझते हैं, लेस एरियर, तो सबका एरियर हिसाब करते। देखिए एल का जो एरियर था वो कितना एरियर था? एल देखिए आपका 50 इंटू 5.4, वहाँ नहीं दिया, कहाँ नहीं दिया? अलॉटमेंट पे नहीं दिया था। प्लस 50 इंटू 4, 50 इंटू 4 उन्होंने फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया था, प्लस 50 इंटू 3 उन्होंने अलॉटमेंट पे नहीं दिया, सॉरी फर्स्ट फाइनल कॉल पे नहीं दिया। तो व्हाट इज़ द टोटल फेलियर बाय एल?
50 into 5.4 is 270, 50 into 4 is 200, 50 into 3 is 150. तो 200, 300, 150, 350 plus 270, 350 plus 200, 550 plus 70, 620. टोटल एरिया इनका कितना है? 620 है। फिर से देख लीजिए, 50 इंटू 5.4 हो जाता है 270 रुपया, और ये 54 या 200, तो 270 प्लस 200 हो गया आपका 470। और 470 में से में और 150 जोड़ देंगे तो 470 में 100 जोड़ेंगे तो 570 प्लस 50 तो 620 एरियर हो गया एल की तरफ से। फिर बी का एरियर कितना है? बी का हिसाब कैसे करेंगे एरियर का? तो बी सिर्फ फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में फेल है, लेकिन 100 शेयर्स का है। तो देखिए 100 शेयर इंटू 4 फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया, फिर प्लस 100 शेयर इंटू 3 फर्स्ट फाइनल कॉल पे नहीं दिया, तो बी की तरफ से जो पैसा नहीं मिला वो 100 इंटू 4 400, 100 इंटू 3 300, यानी टोटल 700 रुपया उनसे नहीं मिला है। और सी भाई साहब की तरफ से भी तो फेल हुआ है, लेकिन सी भाई साहब सिर्फ फाइनल कॉल पे नहीं दिया है, तो उनका 150 शेयर्स का फेल है। 150 शेयर इंटू 3, तो सिर्फ 450 रुपये वो नहीं दे पाए। तो ये हो गया फॉरफीचर का हिसाब, मैंने एरियर का हिसाब। तो एल का टोटल एरियर हुआ 620, बी का टोटल एरियर हो गया 700, और सी का टोटल एरियर हो गया 450। तो टोटल एरियर कितना हो गया? टोटल कॉल्स इन एरियर, टोटल कॉल्स इन एरियर अगर तीनों का एक साथ हिसाब करें तो वो हिसाब हो जा रहा है आपका 620 प्लस 700 1320, प्लस 400 1300 प्लस 400 हो गया 1720 प्लस 50 1770। 1770 फिर से हिसाब करते हैं। 450 प्लस 700 हो गया 1150, 1150 प्लस 600 होता है 1750 प्लस 20, ठीक है 1770। अब पैसा, कुछ पैसा जब्त होता, कौन सा पैसा जब्त होता है? जिससे जितना पैसा ले लिए हैं, यहाँ टी/टी को पढ़ेंगे ट्रांसफ़र टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। जो पैसा जिससे जितना जमा हो चुका वही सब जब्त करके किस अकाउंट में चला जाता है? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। कैसे जब्त होगा ज़रा देखिए, सबको अलग अलग मैं समझा रहा हूँ। अब देख लो, एल का टोटल देना था एल को 22, तो एल 22 में सिर्फ एप्लीकेशन के ही समय ही पैसा पूरा दिया 8 रुपया, लेकिन 1 रुपया 60 पैसा उसका प्रोराटा अलॉटमेंट के हिसाब से भी कटा था। यानी एल का जो पैसा फॉरफिट होगा वो 50 शेयर्स का इंटू 9.6, 9 रुपया 60 पैसा फॉरफिट हो जाएगा। आप बोलोगे कैसे फॉरफिट होगा 9 रुपया 60 पैसा? तो अब देखिए, उसका एप्लीकेशन पे 8 रुपये देना था, अलॉटमेंट पे 7 रुपया, लेकिन अलॉटमेंट उसका एरियर निकल रहा था 5 रुपये 40 पैसा, यानी 7 रुपये में 5 रुपये 40 पैसा अगर एरियर निकल रहा था, तो इसका मतलब है कि 7 में से अगर 5.4 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली 1 रुपया 60 पैसा होगा, तो 8 रुपया प्लस 1 रुपया 60 पैसा, 9 रुपया 60 पैसा ये उसका जमा था। किसका जमा था? एल का। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करके निकाल ले, 59 जा होता है 950, 9 5 जा 45, 450, 60 30, यानी 480 रुपया जब्त हो जाएगा किसका? एल का। बी का कितना जब्त होगा? देखिए इसमें समझ में आएगा आपको। बी को देना था एप्लीकेशन पे 8, उसने दिया, अलॉटमेंट पे 7 उसने दिया, उसने फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का नहीं दिया, तो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं दिया, तो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में 7 रुपये नहीं दिया, जो हम लोग एरियर में दिखा चुके हैं। अब ज़रा सुनिए, अलॉटमेंट का इसने दे दिया, लेकिन अलॉटमेंट में 2 रुपये प्रीमियम का था, तो जिसका प्रीमियम वाला इंस्टॉलमेंट पे कोई एरियर नहीं है उसको फॉरफिट में प्रीमियम वाला पैसा नहीं पकड़ेंगे। यानी इसको जो फॉरफिट करेंगे वो 100 शेयर्स का एप्लीकेशन का 8 और अलॉटमेंट का 5, तो सिर्फ 13 रुपया इसका फॉरफिट करेंगे। प्रीमियम का 2 रुपया नहीं पकड़ा जाता अगर उसका प्रीमियम पूरा जमा है तो। हालांकि देखिए अब एल के केस में हम लोगों ने प्रीमियम भी पकड़ लिया क्योंकि उसका अलॉटमेंट फेल था।
तो 100 इंटू 13, इसका जो पैसा फॉरफिट होगा हो गया 1300 रुपीज़ फॉरफिट हो गया। अब सी भाई साहब का चेक करते हैं। सी भाई साहब का भी देखिए, उनको देना था, सी हैज़ टू पे पूरा 150 शेयर को क्या कहते हैं 22 देना था, इसमें प्रीमियम का तो उसने दिया ही है, बिकॉज ही हैज़ फेल्ड ओनली ऑन फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल का अगर 3 रुपये उसने नहीं दिया तो एप्लीकेशन का 8 दे दिया, अलॉटमेंट का 5 ही पकड़ेंगे, 2 प्रीमियम का छोड़ देता, 8 पास 13, 4 रुपया फर्स्ट कॉल का, तो 13 4 17 रुपया। यानी इनका जो एरियर है, सॉरी जमा पैसा है, वो 150 इंटू 17, इतना पैसा इनका जमा था, सिर्फ 3 ही रुपये बेचारे का नहीं जमा था। तो 150 17 जा कितना होता है, 15 17 जा 15 15 जा होता है 2200 225 2250 2550 2500 2550, ये इनका फॉरफिट हो गया। तो ये वर्किंग कितना किसका फॉरफिट हुआ, तो टोटल फॉरफिचर कितना हो गया, टोटल फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट क्रेडिट, टोटल फॉरफिट कितना हुआ, शेयर से फॉरफिट से कितना क्रेडिट हुआ, तो 2550 इसका, 1300 इसका, तो 2550 प्लस 1300 2550 प्लस 1300, इट विल बी 3850 प्लस 480, तो 3800 प्लस 400 4200 4330 4330 total forfeited amount. Okay, this is working for forfeiture. Now working note number 6, okay, for reissue and calculation of profit on reissue. So what is happening here, if you go back into the question, please be attentive here. Later on 250 except 50 shares of C forfeited and were reissued at 4.16 पर शेयर इन कैश। देखिए, हम लोगों ने भी देखा कि टोटल 300 शेयर को हम लोगों ने फॉरफिट किया था, लेकिन उस 300 में से सिर्फ 250 शेयर को हम लोग रीइशू कर रहे हैं। तो एक्चुअली देखिए, 300 शेयर तो किसी एक आदमी का अकेले का नहीं है। उस 300 शेयर में से 50 शेयर एल का था, 100 शेयर्स बी का था एंड 150 शेयर सी का था। तो यहाँ क्या लिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस ब्रैकेट में एक्सेप्ट 50 शेयर्स ऑफ सी, यानी सी का जो 150 शेयर उसमें से 50 शेयर को रीइशू नहीं कर रहे हम लोग। तो यानी किसको रीइशू कर रहे हैं, एल वाला 50 शेयर, बी वाला 100 शेयर एंड सी वाला 100 शेयर्स को रीइशू कर रहे हैं। 50 शेयर्स सी वाला रीइशू नहीं होगा। तो चलिए इसको 16 रुपये करके रीइशू किए, कैसे इसका कैलकुलेशन होगा अब ज़रा देखना पड़ेगा। हो be patient to understand things in detail. It is although lengthy, but it is taking lesser internet data. Working for reissue. So what we have done, we have on reissue में क्या होता है, बैंक डेबिट होता है। बैंक डेबिट होता है कितना से, उस तरह से हिसाब कीजिए ऐसे कि देखिए, शेयर कैपिटल फॉरफिचर में हम लोगों ने क्रेडिट डेबिट कर दिया था। अब रीइशू के समय शेयर कैपिटल को फिर से क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट कितना से होना चाहिए, कितना शेयर को रीइशू कर रहे हैं, 250 शेयर्स को। तो 250 शेयर इंटू 20, उसका जो अपना नॉर्मल प्राइस है 20 होना चाहिए। 250 इंटू 20 जा तो 5000, आई थिंक 5000 रुपये हम लोग को रीइशू करने से आना चाहिए था, बट लेस रिसीव्ड ऑन रीइशू।
रीइश्यू के समय पैसा बेच करके कितना मिला, मनी रिसीव्ड ऑन रीइश्यू इज 250 into 16, 250 into 16 इक्वल्स टू 4000 आया। 4000 बेच करके तो कितने का लॉस हो रहा है, 1000 रुपये का लॉस हो रहा है। फिर से रीइश्यू करने से आना चाहिए था 5000, बट आ रहा है 4000 ही। तो इसके लिए रूल्स है कि ये जो हम लोगों ने इधर फॉरफिट करके जो पैसा रखा हुआ नहीं इधर, ये देखिए फॉरफिट शेयर अकाउंट में 4330, उसमें से पैसा लेंगे। लेकिन उसमें लेते समय ये बात ध्यान रखना है कि हम लोगों ने सी का, देखिए इधर सी का हम लोगों ने फॉरफिट किया था 150 into 17, लेकिन हम लोग उसमें से 50 into 17 को तो रीइश्यू नहीं कर रहे हैं, तो 50 into 17 को नहीं टच करना है। तो ए का पूरा 480 में से टच कर सकते हैं, बी का पूरा 100 शेयर में से टच कर सकते हैं, लेकिन सी का 150 में से नहीं, सी का सिर्फ 100 शेयर into 17 में से टच करके इस लॉस को पूरा करते हैं, लॉस ऑन रीइश्यू को। तो ये जो 4330 है उसमें से चलिए 50 into 17 माइनस कर देते हैं, बाकी पैसा हम लोग लेंगे ना। तो चलिए लेते हैं, कितना का लॉस हो रहा है, इसको यहाँ लिखा जाता है लॉस ऑन रीइश्यू ऑफ forfeited shares debited out of forfeited shares account। तो अकाउंट से कितना रुपये लेना पड़ेगा, सिर्फ 1000 लेना पड़ेगा, क्योंकि आना चाहिए था 5000, आना चाहिए था 5000, आया 4000, तो 1000 का लॉस है। So this 1000 is debited. Okay. Now working note number 7, the last working note for ट्रांसफ़र टू कैपिटल, कितना पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा। तो देखिए यहाँ पर क्रेडिट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, उसके क्रेडिट में टोटल पैसा जो जमा था वो था हमारा, टोटल पैसा जमा था 4330 लेस सीज forfeited shares not reissued। फॉरफिट तो किए थे सी का कुछ शेयर, लेकिन रीइश्यू नहीं किए हैं, वो उसका पैसा इसमें से माइनस कर देंगे। तो वो था, देखिए सी का 150 शेयर्स फॉरफिट के थे, तो उसमें से 50 नहीं रीइश्यू कर रहे, तो 50 into 17, ये 17 देखिए हम लोगों ने उसका फॉरफिट किया था 150 into 17, ऊपर जाकर देख लीजिए हम लोगों ने सी का फॉरफिट किया था। सी का ये देखिए, सी का जो फॉरफिटेड अमाउंट है 150 into 17 है 2550, लेकिन उसमें से 50 को तो रीइश्यू नहीं कर रहे। सो हाँ, सो 15 into 17 कितना होता है, 17 50 जा 5 जा 17 5 जा 85, यानी 850 रुपया उसमें से माइनस कर देंगे। तो देखिए हम लोगों ने टोटल फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट करके रखा हुआ है 4330, उसमें से 850 को टच नहीं करना है ना, क्योंकि उसको हम लोगों ने रीइश्यू नहीं किया। तो कितना अवेलेबल फॉर, अब देखिए फिर है कि फिर है कि लेस लॉस ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स से लॉस कितना हुआ था, 1000 रुपये का लॉस हुआ था। तो देखिए टोटल 4330 रुपीज़ था फॉरफिटेड शेयर में, उसमें से 850 नहीं लेंगे, तो 4330 माइनस 800, तो 4530
minus 50 again. So 4,330 minus 800, 4,530, 3,530, and 3,530 minus 50, तो 3,480, एंड 3,480 में और अगर 1,000 माइनस हो गया तो बच गया 2,480. सो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2,480. ये सही निकला कि नहीं निकला, आई एम चेकिंग इट ऑन कैलकुलेटर एंड देन कंफर्मिंग इट. सो द टोटल अमाउंट वाज 4,330, उसमें से 850 माइनस कर दे तो 0 0 13 माइनस 5 8, 42 माइनस 8 34, again 1,000 minus, so 2,480. Yes, that shall be transferred to capital reserve. So in this way the total working of this question is complete. It has taken time, lengthy time, but patiently all answers has been done correctly. Thank you.